And with another video. Today you will learn about the low level design of Cricinfo. So for those who don't know, Cricinfo is a service which gives the information about cricket matches. So the only statement which was personally presented to me in Atlassian SD2 interview, senior SD2 interview, was design Cricinfo, nothing else. So it's your responsibility to define the scope of the interview session. So I defined this scope. You might define some other scope. Based on that you will have to design the system. So don't try to mug up the solution, just learn how to design services. So let's go through the scope. Before that, I would give you a disclaimer. You will not understand anything in this video if you have not watched my or someone else's design pattern videos. So the design pattern which you should be aware of is observer pattern, singleton pattern, strategy pattern, and factory pattern. So you will find the link in description. I have a playlist on all the design pattern. You can go through it and then come back to this video. So let's go through the scope. User should be able to view the schedule of upcoming matches and result of completed matches. Self-explanatory है. The system should allow user to search for specific matches, team और player. तो यार किसी पर्टिकुलर मैच को आप सर्च कर सकते हो, मैच की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी. देन पर्टिकुलर टीम नेम से यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टीम्स और यू कैन सर्च अ प्लेयर. User should be able to view detailed information about a particular match. So this is basically, if the match has not happened, it will simply show which teams are going to play the match, and if the match has already happened, you will get the match state. So match stats is basically the stats of each player who played the match. So here you can see, you can get the scorecard, which team scored how many runs in how many overs, how many wickets down, commentary and stats. This stats is player stats. Commentary, basically one of the most important thing in this is that commentary you will need to add in the system. So I'll give you an overview. For this scope, commentary will happen ball by ball. Every ball commentators say something, right? So you will have to record that, and then another thing will come related to commentary in future. I'll tell you. So let's move ahead with the other scope. System should support real-time update of live score and match information. These three words: real-time update of live score. So for each ball, score will change. Either one ball will definitely count, maybe some 6-4, single, double, wicket down, something will happen. So score will update, or a dot ball, score will update. So those who have subscribed for the particular live match which is going on, ball by ball, they should get the real time update. From this line only you should be able to understand we will be needing observer design pattern. Okay, I will tell you in the code how our system will move. I will show you a class diagram also. System should handle concurrent access to match data. So that's basically in every low level design interview, unless you are required to design a desktop app, because desktop app will be used by one person only, so no concurrency. But mostly 90% you will get to design a web app type of thing. So you will have to handle concurrent user. Now those who don't know concurrent user, you can watch some other video, श्रद्धा दीदी एंड ऑल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंकरेंट यूजर्स. मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं. मल्टीपल यूजर ट्राइंग टू डू समथिंग साइमल्टेनियसली. सो नेक्स्ट इज सिस्टम शुड बी स्केलेबल एंड एबल टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूजर रिक्वेस्ट. सो व्हेनेवर यू से स्केलेबल ना, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. For a low level design interview scope, scalable means there should not be any object explosion. Now what is object explosion? You will learn in singleton design pattern video, which you will find in description. Link will be there. The system should be extensible to accommodate new feature and enhancement in future. So this line only you should be able to identify. You should be able to understand if you have watched my previous video कि somewhere strategy design pattern का scope है यहाँ पे. तो मैं आपको नीचे बताऊंगा स्ट्रेटेजी पैटर्न क्यों हम यूज करते हैं. तो बेसिकली जब भी किसी काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं और फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई नया तरीका भी आ सकता है,
तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग कोड में आपको चेंजेस ना करने पड़े और वो नया तरीका आपके सिस्टम में आ जाए रन टाइम पे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज करते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा एक और वीडियो है हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने एक जनरल स्टेप्स बताए हैं किसी भी लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू को अप्रोच करने के लिए। उसमें पहला स्टेप्स था थिंक अबाउट एंटिटी क्लासेस। अब मैंने तो ये एंटिटी क्लासेस सोची थी, हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ और एंटिटी क्लासेस सोच लो। तो बेसिकली जो पहला स्टेप है ना एंटिटी क्लासेस सोचना, ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप 5-6 वीडियो देखोगे ना, 7वें वीडियो में अपने आप एंटिटी क्लासेस डिजाइन करने लग जाओगे, ठीक है। और कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है डिजाइनिंग में। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। भाई 2005 में बना था कोई ऐप, उस जमाने के हिसाब से वही बेस्ट सिस्टम था। फिर नए रूल्स, नए कानून, नए नियम आ गए। हथियार भी तो चेंज होते हैं आर्मी के समय समय के हिसाब से। भाई 1970 में हंटर विमान ही बेस्ट थे, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो आपको सिस्टम ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि एंटिटी क्लासेस सोच कैसे सकते हो। एंटिटी क्लासेस बेसिकली ना ऐसे समझ लो कि नाउन्स ऑफ इंग्लिश, समथिंग विच हैज एन आइडेंटिटी। जॉन, जैक, रायन, रिवर, गंगा, ये सब आइडेंटिटी है, ठीक है। अलोन दे कैन एग्जिस्ट, बट some functions which will operate on data member of this entity classes are called service function. For example, user should be able to view the schedule, तो एक view schedule नाम का फंक्शन होगा। They are like verbs of English, they cannot exist stand alone। जैसे कि इंग्लिश के verbs है play, eat, इनका सेल्फ में कोई मीनिंग नहीं है। They will always operate on a noun। जैक प्लेज, गंगा फ्लोज, मिला के इसका मीनिंग है। तो सर्विस फंक्शंस आर लाइक वर्ब्स व्हिच विल ऑपरेट ऑन एंटिटी क्लासेस डेटा मेंबर। तो एंटिटी क्लासेस सोच के देखते हैं। सबसे पहले तो यार यूजर के लिए सिस्टम बना रहे हैं, यूजर नाम की एंटिटी होगी। अब लाइव अपडेट चाहिए यूजर को, तो वो ऑब्वियसली मैचेस को सब्सक्राइब करेगा। जो लाइव मैचेस चल रहे हैं उनका स्कोर जैसे अपडेट होगा तो यूजर को सब्सक्रिप्शन जाएगा, तो एक सब्सक्रिप्शन का भी एंटिटी होगी। अब मैच किसके बीच में होगा, टीम्स के बीच में होगा, तो टीम्स की भी एंटिटी होगी। टीम के अंदर कौन होंगे, प्लेयर्स होंगे, तो प्लेयर की भी एंटिटी होगी, ठीक है। अब एक मैच की भी एंटिटी होगी, क्योंकि मैच को आइडेंटिटी मिल रही है। कैसे कैसे आइडेंटिटी मिल रही है, इट हैज सम डेटा मेंबर विच गिव्स इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, हर मैच की एक ही कमेंट्री होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मल्टीपल मैच की सेम कमेंट्री हो या एक मैच की मल्टीपल कमेंट्री हो, ठीक है। लैंग्वेज बेस वाला यहाँ पे स्कोप नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 कमेंटेटर हैं, वही कमेंट्री करेंगे, ठीक है। और मैच का एक स्कोर कार्ड होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि इस टीम ने इतने ओवर में इतने विकेट देकर इतने रन बनाए, दूसरी टीम ने इतने ओवर में इतने विकेट देकर इतने रन बनाए, ठीक है। तो यही एंटिटी क्लासेस यूज होंगी। हो सकता है आप जब डिजाइन करो तो एक आध और सोच लो। अगर आपके दिमाग में बेटर डिजाइन आता है तो मुझे जरूर बनाना कमेंट में। मेरा ये राउंड क्लियर हो गया था, इससे मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक डिजाइन है। एटलासियन बड़ी कंपनी है, इसमें लो लेवल डिजाइन क्लियर हुआ था, तो मतलब उनको पसंद आया था, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से चाहिए होंगे। तो देखो यार, कुछ कुछ फंक्शंस तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगे, बट कुछ कुछ फंक्शंस आपको खुद से भी सोचने पड़ते हैं। जैसे कि अब यूजर ऐप को यूज कर रहा है तो रजिस्टर तो यूजर को कराना ही पड़ेगा, लॉग इन साइन अप टाइप का। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया है कि यूजर शुड बी एबल टू रजिस्टर इन द ऐप, बट ये तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी खुद से सोचोगे यार। देखो कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस ऐसा होता है ना, इसकी परिभाषा समय के साथ साथ बदलती जाती है। कि जब आप छोटे बच्चे थे तो स्कूल में सारी कॉपी किताबें लेके आना, ये कॉमन सेंस है। 11th-12th में गए तो कोचिंग जाना है, उसके बाद सीधा घर आना है, पढ़ाई करनी है, कॉमन सेंस है, ठीक है। कॉलेज में गए हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा मौज मस्ती करनी है, दुनियादारी देखनी है, ये भी कॉमन सेंस है। तो ये कॉमन सेंस बदलता जाता है टाइम के साथ साथ, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, रजिस्टर तो यूजर को करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि रियल टाइम अपडेट चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब कराना होगा, तो एक सब्सक्राइब का फंक्शन है, ठीक है। बहुत ज्यादा इन पे ध्यान मत देना कि ये डेटा मेंबर क्या है, ये मैं नीचे कोड में आपको बताऊंगा इसकी जरूरत क्या है। बस इतना समझ लो कि सब्सक्राइब कराने का एक फंक्शन चाहिए, वो कैसे काम करेगा वो मैं नीचे बताऊंगा। अब सब्सक्राइब का चाहिए तो अनसब्सक्राइब का भी चाहिए, है ना। उसके बाद
अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखना कि मैंने आपको बताया था कमांड डिजाइन पैटर्न का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो जहां पे भी अंडू रीडू टाइप की चीज हो सकती है वहां हम कमांड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूजर ने सब्सक्राइब किया, उसका अंडू होता है अनसब्सक्राइब, उसका रीडू होता है फिर से सब्सक्राइब। तो यहां पे भी आप कमांड लगा सकते हो, बट क्यों नहीं लगाओगे? इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट से फोकस किस पे जा रहा है? रियल टाइम अपडेट पे। तो ऑब्जर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो ऑन टॉप ऑफ इट कमांड लगा देना, बट अगर आपने सिर्फ कमांड लगाया और मेन चीज लगाई नहीं, भाई क्रिक इन्फो टाइप की जो ऐप होती है, कोई भी यूजर क्यों आता है? वो अंडू रीडो तो उसका मेन फोकस होता नहीं है, उसका मेन फोकस होता है रियल टाइम अपडेट लेना। अब यही क्वेश्चन अगर गिटहब को लेके आया होता तो वहां पे आप अंडू रीडू बहुत करते हैं ना गिटहब में, तो हम लोग यार कोई गलत कमिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, बार बार स्टेजिंग एरिया में फाइल लाते हैं, उसको वहां से निकालते हैं। तो गिटहब अगर पूछता तो उसमें रियल टाइम अपडेट कम यूजर जाता है, लेकिन अंडू रीडू ज्यादा करता है, तो वहां आपका कमांड का फोकस होता है। इस तरह से सोचा करो, ठीक है? तो एक ओवरकिल हो जाएगा अगर यहाँ पे अंडू रीडू आप लगा दोगे तो। टाइम बचे तो लगा देना, मेन फोकस ऑब्जर्वर पे रहेगा, ठीक है? अगला क्या था? यूजर शुड बी एबल टू व्यू द स्केड्यूल ऑफ अपकमिंग मैचेस, तो सी अपकमिंग मैचेस फंक्शन लगा दिया, ठीक है? रिजल्ट ऑफ कंप्लीटेड मैचेस, तो रिजल्ट ऑफ कंप्लीटेड मैचेस फंक्शन लगा दिया, व्यू रिजल्ट ऑफ मैच। अगला क्या है? सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू सर्च फॉर स्पेसिफिक मैच, टीम, प्लेयर, ठीक है? तो सर्च मैच, ठीक है, ये एक फंक्शन लगा दिया। उसके बाद क्या है? टीम की डिटेल चाहिए, गेट टीम डिटेल, गेट प्लेयर डिटेल, यहां पे प्लेयर की डिटेल चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपडेट लाइव स्कोर। अब देखो सिस्टम में ऐसे नहीं दिया हुआ है, बट आप खुद भी तो सोचो क्रिक इन्फो कैसे काम करेगी भाई। हर मैच पे कुछ ना कुछ स्कोर होगा, ऐप में जाके वो अपडेट होगा, तो अपडेट करने का फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जब जब ये अपडेट होगा तब तक इन पे मैच पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन जानी चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये जो पर्टिकुलर चीज अब मैं बता रहा हूँ ये आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि आप नोटिफाई यूजर को कैसे कराओगे। भाई आइडियली तो यही होता है कि बॉल बाय बॉल ही आपको कमेंट्री, मतलब रेडियो में कैसे होता था, हर बॉल की आपको बताता था कमेंट्री, तो वैसे ही समझ लो वहां भी तो नोटिफाई करता है यूजर को। अब यहाँ पे आपने ऐप बना दिया, उसमें आपको पुश नोटिफिकेशन टाइप की आ जाएंगे कि इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे ये हुआ। तो बेसिकली एक स्ट्रीमिंग टाइप की हो रही है, हर एक बॉल पे कमेंट्री जा रही है, ठीक है? हर एक मिनट पे नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, कि इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे ये हुआ, ठीक है? तो ये हो गया। अगला है नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। तो अगर ऑब्जर्वर पैटर्न का वीडियो आपने देखा होगा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको समझ में आ जाएगा। नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन सभी लोग जिन्होंने मैच को सब्सक्राइब किया उन्हें नोटिफाई कराने के लिए यूज होता है। अब एक चीज आप यहां पे देख रहे होगे कि मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेटेजी पैटर्न, देखो पहला स्टेप तो था एंटिटी लिखना, हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिजाइन का जो मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें पहला स्टेप था एंटिटी सोचना, दूसरा था सर्विस फंक्शन सोचना, तीसरा था कि क्या डिजाइन पैटर्न आप लगा सकते हो। तो देखो जो मैं अगले 4 पैटर्न बता रहा हूं ना वो तो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लगते ही है। स्ट्रेटेजी, सिंगलटन, फैक्ट्री और स्ट्रेटेजी, सिंगलटन, फैक्ट्री और ऑब्जर्वर भी लगी जाता है। इसमें से स्ट्रेटेजी, सिंगलटन, फैक्ट्री तो हर जगह लगेगा, हम 99.99%। मैं जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूं ये क्या होते हैं। स्ट्रेटेजी पैटर्न हम तब लगाते हैं जब किसी एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है कि एक नए तरीका ऐड हो सकता है और बिना कोड को चेंज किए रन टाइम पे उस नए तरीके से अब आप इस काम को कराना चाहते हैं। जैसे सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको भिजवानी है, अभी आपके पास ईमेल और पुश टाइप है, कल को स्लैक भी आ सकता है, तो एग्जिस्टिंग कोड को चेंज किए बिना जैसे ही स्लैक की रिक्वायरमेंट आएगी तो स्ट्रेटेजी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एक नई क्लास बना दोगे स्लैक के लिए। कैसे? मेरा स्ट्रेटेजी पैटर्न का वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। फैक्ट्री पैटर्न, जब भी इफ एल्स कंडीशन के अंदर बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन हम अलग अलग रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रिलेटेबल क्लासेस मतलब वो क्लासेस जो किसी कॉमन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, दीज आर ऑल शेप्स। तो मान लो सम इफ कंडीशन है, इफ टाइप इक्वल टू सर्कल तो सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इफ टाइप इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया। तो बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन अलग अलग रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो ये जो इफ एल्स लॉजिक है ना, ऐसा भी हो सकता था कि जब आप स्क्वायर का बना रहे हो ऑब्जेक्ट तो S3 में लॉग करा रहे हो,
जब आप रेक्टेंगल का बना रहे हो तो डायनमो में लॉक करा रहे हो। तो अलग अलग लॉजिक है ना, ये लॉजिक को हाइड करा जाता है एक्सटर्नल सिस्टम से। कैसे? एक फैक्ट्री क्लास बना के जिसके अंदर ये पूरा इफ एल्स लॉजिक डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे फैक्ट्री और स्ट्रेटेजी। तीसरा सिंगलटन। सिंगलटन का वीडियो देखना। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन एक प्रॉब्लम होती है और एक शेयर्ड स्टेट इनकंसिस्टेंट वैल्यू। मेरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा सिंगलटन किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार फ्लो डायग्राम समझते हैं सिस्टम का कैसा होगा। सबसे पहले यूजर आएगा, ऐप में रजिस्टर करेगा, यूजर की आईडी बनेगी, नाम बनेगा। उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर मैच को सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्रिप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसमें मैच आईडी होगी, लैंग्वेज होगी। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे के लिए हमने अभी इंग्लिश ही रखी है केवल। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ाना नहीं है क्योंकि आधे घंटे का होता है इंटरव्यू वहां पे, तो इतना ही स्कोप रखते हैं। बट हमने एक लैंग्वेज फील्ड दी हुई है कि अगर मान लो टाइम बच गया तो इंटरव्यू आगे को बोल सकता है कि हिंदी, तेलुगु, इन सबको कैसे आप सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कराओगे। तो इसलिए हमने एक लैंग्वेज की फील्ड दे रखी है, बट ये अभी के लिए इंग्लिश ही रहेगी। अब ये है इवेंट टाइप। तो नीचे आप कोड में समझोगे कि इवेंट टाइप क्या होगा। देखो भाई, बॉल बाय बॉल आपको सिस्टम के बारे में पहले सोचो, डायरेक्ट कोड में मत सोचो। बॉल बाय बॉल आपको कमेंट्री करानी है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब मान लो टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच में भाई क्या होता है, 100 में से 80 बॉले 70 बॉले तो डॉट ही चली जाती हैं। मतलब अब तो मैं बहुत टाइम से क्रिकेट देख नहीं रहा हूं, जब मैं देखता था 10-12 साल पहले छोटा था, तो 100 में से राहुल द्रविड़ 250 गेंदे खेल के 18 रन 14 रन बनाते थे। तो क्या यूजर को बॉल बाय बॉल आप दोगे अपडेट? वो तो पगला जाएगा ना, भाग जाएगा, बोलेगा जब कुछ चेंज हो सिस्टम में तो बताना, डॉट बॉल का क्या अपडेट दे रहे हो। बट अगर T20 मैच होगा तब तो आप हर एक बॉल का दोगे, क्योंकि T20 मैच में क्या होता है भाई, 120 गेंदें होती है, मुश्किल से 15-17 डॉट होती है, बाकी हर में छक्का चौका सिंगल डबल विकेट कुछ होता ही है। तो T20 के लिए आप हर बॉल पे अपडेट मारोगे। तो इवेंट क्या है ना, ये अलग अलग इवेंट मैंने बनाए हुए हैं, जैसे विकेट गिरना, ठीक है, चौका छक्का होना, ये सब इवेंट्स होंगे जिनके बेसिस पे सब्सक्रिप्शन बनेंगे। तो यूजर सिलेक्ट कर सकता है कि उसे जब भी विकेट गिरे तब का नोटिफिकेशन आए, या जब भी छक्का चौका पड़े तब का नोटिफिकेशन आए, या उसको डिफॉल्ट बॉल बाय बॉल नोटिफिकेशन चाहिए, भले ही डॉट बोलो कुछ भी हो। ठीक है, वो हो जाएंगे इवेंट। ठीक है, अब ये इंटरव्यूअर स्पेसिफाई नहीं करेगा, ये आपको, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की। अब मान लो आपने बहुत सारे क्वेश्चन 2-4 लगाए, सारे डिजाइन पैटर्न समझ लिए, प्रैक्टिस नहीं की, अब वहां पे गए, उसने बोला डिजाइन क्रिक इन्फो, आपको पता ही नहीं है क्रिक इन्फो क्या होता है, तो पहले 15 मिनट तो वो आपको समझाने में खा जाएगा। उसमें से आप आधा समझोगे, उस आधे का आधा आप जाके सिस्टम डिजाइन कर पाओगे और फेल हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, फिर बोलोगे इंटरव्यूअर खराब था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ऐसे बनेगा। इवेंट टाइप मैंने बता दिया। अब मैच का ऑब्जेक्ट, तो मैच की आईडी होगी, उसमें 2 टीमें खेलती हैं, टीम ए टीम बी, एक मैच का स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा किस टीम ने कितने रन बनाए हैं। ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, भले ही यूजर को हम अलग अलग, मान लो किसी ने बॉल बाय बॉल भी सब्सक्राइब किया है, तो हर बॉल पे कुछ ना कुछ कमेंट्री तो कमेंटेटर करेगा ही, वो कमेंट्री भी यूजर को सुनानी है। तो यूजर को तो चलो आप बॉल बाय बॉल अगर उसने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्री आप सुना दोगे, बट क्या इस मैच के ऑब्जेक्ट में हर बॉल के लिए एक कमेंट्री ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी लिस्ट आप स्टोर कराओगे? तो भाई टेस्ट मैच में तो कितनी बॉलें होती हैं, हजारों बॉलें होती हैं, तो 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे हर मैच के लिए। तो उससे बचने के लिए हम एक ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर वो जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री का टेक्स्ट होगा वो अपडेट करते जाएंगे, दैट्स ऑल। यूजर चाहेगा तो उसको हर बॉल की कमेंट्री भिजवाते रहेंगे। ठीक है, एक ही ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, लो लेवल डिजाइन में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये तीनों आप किसी और के वीडियो देख लेना, अगर ना समझ में आए तो बताना, मैं ही वीडियो बना दूंगा। ये एग्जांपल है कंपोजिशन का। ठीक है, क्योंकि एक मैच की एक ही कमेंट्री हो सकती है, एक कमेंट्री एक ही मैच को बिलोंग कर सकती है, 1-to-1 रिलेशनशिप है दोनों साइड से। ठीक है, अब देखो ये जो इवेंट है, इवेंट क्या है, बॉल का होना, मतलब डॉट होना या विकेट होना। फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी इसमें ऐड करा सकते हो आप कि छक्का लगना, चौका लगना। इन इवेंट्स के लिए ना हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, क्योंकि नोटिफिकेशन भिजवाने के मल्टीपल वेज है, मतलब इवेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि कोई नया, मतलब नए इवेंट भी आ सकते हैं ना। स्टार्टिंग में हमने सिस्टम बनाया तो बोला कि डिफॉल्ट एक तो रहेगा कि हर बॉल पे दे दो,
नोटिफिकेशन। दूसरा तरीका ये है कि जब भी विकेट गिरे तब दे दो। तीसरा ये भी हो सकता है फ्यूचर में तरीका कि जब ओवर एंड आए तब एक पूरा स्कोर दे दो। या चौथा एक ये भी हो सकता है जब भी छक्का पड़े या चौका पड़े तब दे दो। तो एक काम है, उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। तो स्ट्रेटजी पैटर्न का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। सिंपली हम एक इंटरफेस बना देते हैं जिसके अंदर वो जो काम को करने का तरीका है उस नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। अब जितने भी तरीके हैं उन सब तरीकों के लिए कंक्रीट क्लासेस बनाते हैं जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी और अपना अपना फंक्शन डिफाइन कर देंगी। स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, वरना ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये इंटरफेस बनाया, इसमें फंक्शन डाला जो डिसाइड करेगा कि किस इवेंट को नोटिफाई करना है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके होंगे। बॉल का होना, मतलब एक तो डिफॉल्ट है हर बॉल पे दे दो, एक है विकेट का गिरना, एक छक्का चौका, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखो फ्लो डायग्राम है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, नीचे कोड में अच्छे से समझाऊंगा। फिर एक होगा आपको स्कोर बताने की सर्विस। तो जब भी हर बॉल पे कुछ ना कुछ इवेंट होगा तो लाइव स्कोर अपडेट होगा, छक्का पड़ा, चौका पड़ा, विकेट हुआ, डॉट बॉल हुई, कुछ भी हुई। ठीक है, स्ट्रीम बॉल, हर बॉल की कमेंट्री भिजवानी है यूजरों को। ठीक है, और जो कमेंट्री का टेक्स्ट है वो ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे डालना पड़ेगा मैच के अंदर। और नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन कुछ नहीं करता है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी लिस्ट पड़ी होगी, वो सारी लिस्ट को एक एक करके नोटिफिकेशन भिजवा देता है। इसको सिंगलटन क्यों बनाया है भाई? देखो यहां पे ना दोनों चीजें हैं। देखो सिंगलटन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी काम दो सिचुएशन आती है तो सिंगलटन जरूर करना पड़ता है। पहला ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन बचाने के लिए, दूसरा कोई भी सर्विस फंक्शन जब किसी शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट कर रहा हो तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। वो वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये दोनों टर्म समझ में आएंगे। मैं यहां पे नहीं बताऊंगा वरना वीडियो फालतू में बहुत लंबा होगा। ठीक है, बस एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक मैच हो रहा है, करोड़ों लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन करोड़ों लोगों को जो कमेंट्री भिजवानी है, जैसे ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हर एक यूजर को कमेंट्री भिजवाएगा। अब मैं पहला यूजर हूं मान लो, और मेरे को चाहिए कमेंट्री, तो ये वाला फंक्शन मेरे सिस्टम के लिए कॉल होगा, मतलब मेरी डिवाइस के लिए, है ना। तो जो भी, मतलब ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर ही आपने डाला होगा उसमें, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना तो ये फंक्शन आप यूज कर नहीं सकते हो, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अब करोड़ यूजर होंगे तो करोड़ ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा यहाँ पे। अगर कंकरेंटली आ गए सबके सब, मेमोरी में 1 करोड़ ऑब्जेक्ट एक साथ बन गए, हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मान लो करोड़ों ऑब्जेक्ट होंगे तो सब अपना अलग अलग स्कोर अपडेट करेंगे ना। मान लो अभी स्कोर है 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, और 1 करोड़ यूजर आ गए एक साथ, सब्सक्राइब मार दिया, मैच लाइव चल रहा था, और सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बना, सबके लिए अपडेट लाइव स्कोर अलग अलग कॉल हुआ। मतलब मैं चलो एक्सकेली ड्रॉ से ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए अवॉइड करता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहला यूज़र, ये दूसरा यूज़र, ये तीसरा यूज़र, ये चौथा यूज़र, से करते करते 1 करोड़ यूज़र है। मैच यहाँ पे एक चल रहा है, उस मैच में स्कोर है, अभी कर लो कि चलो 2 ओवर 1 विकेट है एंड 12 रन है। अब मान लो सिंगलटन ना बनाते हुए अपडेट लाइव स्कोर यहीं पे आपने बना दिया होता, या ऐसे समझ लो कि एक यहां पे आपने एक और सर्विस बना दी होती, मैच अपडेट सर्विस। ठीक है, और उसमें एक फंक्शन होता अपडेट लाइव स्कोर। ठीक है, अब अगर सिंगलटन नहीं यूज करते तो जब मैंने जब सिस्टम में लॉगिन किया, मैच को सब्सक्राइब किया, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे बनेगा, ऐसे ही दूसरे यूजर के लिए अलग बनेगा। ठीक है, अब
हजारों मतलब करोड़ों ऑब्जेक्ट इसके बन गए। अब जब भी कोई इवेंट यहाँ पे होगा, कोई एक्सटर्नल सिस्टम होगा जहाँ से इंफॉर्मेशन तुम्हें आ रही होगी कि ये बॉल हुई है, इसमें ये इवेंट हुआ है, तो इन करोड़ों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके ही लाइव स्कोर अपडेट होगा, है ना। लाइव स्कोर अपडेट होगा। तो सपोज करो कि इस यूजर के लिए जो ऑब्जेक्ट बना था, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना था, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके लाइव स्कोर अपडेट हुआ था, है ना। और इसी क्लास में मान लो ये वाला भी फंक्शन था। इसी क्लास में मान लो एक और फंक्शन था, कैसे बनाऊं, गेट अपडेट स्कोर, गेट लाइव स्कोर, है ना। और स्कोर का डेटा मेंबर यहां पे था, मान लो स्कोर का डेटा मेंबर था यहाँ पे, ठीक है। तो जब करोड़ों ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये स्कोर का डेटा मेंबर भी करोड़ों बनेगा अलग अलग, ठीक है। और ये जो फंक्शंस होंगे, मान लो इस ऑब्जेक्ट को यूज करके लाइव स्कोर अपडेट हुआ था, है ना। तो यहां पे आपको लाइव स्कोर कुछ और दिखेगा, इन दूसरे यूजरों को पुराना वाला दिखेगा, क्योंकि सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट बने थे, सबका अलग अलग डेटा मेंबर बना था। किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके स्कोर अपडेट हुआ होगा तो केवल उस यूजर को अपडेटेड स्कोर दिखेगा, बाकियों को पुराना दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इस पूरी क्लास को सिंगलटन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सिंगलटन। इससे क्या होता है, कितने भी यूजर आ जाए आपके सिस्टम में, इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कभी भी कोई इवेंट हुआ, बॉल पे रन गया, विकेट गया, तो एक ही ऑब्जेक्ट पूरे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू स्कोर अपडेट होगा, लाइव स्कोर फैच होगा, है ना। अब एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही डेटा मेंबर होगा, यानी एक ही सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा स्कोर, ठीक है। मेरा सिंगलटन पैटर्न का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वही चीज है यार यहाँ पे, इसीलिए इस क्लास को हमने सिंगलटन बनाया, ठीक है। अभी जो ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट था, इसका यूज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब मैच खत्म होगा तो इस ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट में आपको लाइन बाय लाइन हर बॉल की कमेंट्री मिल जाएगी, पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, हर बॉल की कमेंट्री मिल जाएगी। बट यूजर को जब नोटिफिकेशन जाएगी तो हर मतलब जो लास्ट बॉल अभी जो रिसेंटली हुई है उसकी समरी जाएगी, उसकी कमेंट्री जाएगी, ठीक है। भाई ऐसा करना नहीं चाहते हो ना कि पहले जो बॉलें हुई हैं उसकी कमेंट्री अभी क्यों सुना रहे हो यूजर को, अभी जो बॉल हुई है उस पर क्या बोला कमेंटेटर ने, बस उतना बताना है आपको। तो यही था सिस्टम। और अब चलते हैं इसके कोड पे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ऐसे समझ लो कि सबसे मेन फोकस इस पूरे सिस्टम का क्या था, अपडेट लाइव स्कोर कराना, यूजर को लाइव स्कोर अपडेट कराना, है ना, जिसने भी सब्सक्राइब किया है। तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का अगर वीडियो आपने देखा होगा, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल एक इंटरफेस हम बना देते हैं, ऑब्जर्वर उसका नाम रख देते हैं, नाम आप कुछ भी रखो, मैं तो बस आपको समझ में आ जाए इसलिए ऑब्जर्वर रख देता हूँ। और जो अपडेट कराना है ऑब्जर्वर को, वो फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और मल्टीपल तरह के ऑब्जर्वर हो सकते हैं ना, एक तो यहाँ पे यूजर है, वो ऑब्जर्व कर सकता है मैच को। एक यूजर की जगह मान लो कोई और सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहा है, वो ऑब्जर्व कराना चाहता है। जैसे कि मान लो आपने एनालिटिक्स करना है हर मैच का, बॉल के हिसाब से कुछ AI/ML का सिस्टम बनाया है, तो रोबोट भी हो सकता है, या फिर AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई क्लास होगी जो इस मैच पे एनालिटिक्स करती होगी, वो भी ऑब्जर्व करना चाहती है कि हर मैच पे क्या हो रहा है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर हो सकते हैं ना। अब यूजर को अपडेट कराना है, उसका अलग लॉजिक होगा, क्योंकि यूजर तो ह्यूमन है, मोबाइल में आप भेज दोगे नोटिफिकेशन। AI तो ह्यूमन है नहीं, उसका अपडेट कराने का लॉजिक अलग होगा। इसलिए हमने एक कॉमन इंटरफेस बनाया है, जितने भी ऑब्जर्वर होंगे वो सब इसको इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे और अपना अपना अपडेट का लॉजिक दे देंगे। तो हमारे केस में केवल यूजर ही ऑब्जर्व करेगा, तो इसलिए कंक्रीट क्लास बनाई यूजर की आईडी होगी, नाम पता होगा, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। अपडेट कराने का फंक्शन ओवरराइड कराया है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे केवल सिस्टम डॉट आउट लिख दिया है, बट एक्चुअली में कुछ लॉजिक हो सकता है ना। जैसे यूजर को अगर आप अपडेट कराना चाहते हो तो आप चाहते हो उसको ईमेल जाए, पुश नोटिफिकेशन जाए, जो भी लॉजिक होगा वो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है।
AIML का कुछ अलग हो सकता है, मान लो AIML का कोई भी सिस्टम होता है वो भी ऑब्जर्व करना चाहता है तो यहाँ AIML की एक क्लास बनाते हैं। उसके अपडेट में क्या करते हैं आप, AIML सिस्टम को नोटिफिकेशन तो भिजवाओगे नहीं, तो आप क्या कराते हैं, मे बी उनका जो ग्राफ होता है लैंग चेन लाइन ग्राफ से जो बनता है, मतलब एजेंट्स बनते हैं ना, उन ग्राफ को अपडेट करा सकते हो आप, ठीक है, रीरन करा सकते हो ग्राफ, जो भी लॉजिक होगा वो यहाँ अपडेट के अंदर लिख दोगे। दूसरी एंटिटी थी सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन किसने लिया है, उस यूजर की आईडी, किस मैच के लिए लिया है उसकी आईडी, किन किन इवेंट के लिए लिया है। इवेंट टाइप मैंने क्या बताया था, मल्टीपल हो सकते हैं ना, मैं अभी नीचे कोड में बताऊंगा इवेंट टाइप क्या क्या हो सकते हैं। लैंग्वेज मैंने बताया था कि अभी हम केवल इंग्लिश ही मान के चल रहे हैं, बट आगे भी हो सकती है, अगर आपके पास टाइम बचा तो इंटरव्यूअर बोल सकता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस की कमेंट्री कैसे स्कोप में लाओगे, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब देखो टीम है ना, मैच टीम के बीच में होगा तो टीम की आईडी, टीम का नाम, उसमें कितने खिलाड़ी हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर। ये आ गई प्लेयर की एंटिटी, तो प्लेयर की आईडी, प्लेयर का नाम, प्लेयर का रोल, कप्तान है कि वाइस कप्तान है कि बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, क्या है, ऑलराउंडर है, कितने रन ठोके आज तक जिंदगी में, कितने बॉल फेस की आज तक जिंदगी में, ये प्लेयर स्टैट है, ठीक है। और कितने विकेट लिए आज तक जिंदगी में, कितने ओवर डाले आज तक जिंदगी में, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। स्कोर कार्ड, हर मैच का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो बेसिकली इनिंग नंबर बताएगा स्कोर कार्ड कि पहली इनिंग में इतने रन बने, इतने विकेट लिए, इतने ओवर में, और किस किस प्लेयर की स्टैट भी स्टोर करानी पड़ेगी ना आपको हर मैच में। भाई आज मैच हुआ उसमें 10 खिलाड़ी खेले, इनका ये स्टैट है, कल मैच हुआ उसमें वो 10 खिलाड़ी खेले, उनका अलग ही स्टैट है ना। भाई यहाँ पे जो प्लेयर का स्टैट है वो तो प्लेयर की जिंदगी का स्टैट है, जैसे राहुल द्रविड़ 10,000 रन 20 छक्के ऐसे होता है ना, बट पर मैच में क्या स्कोर है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हर प्लेयर का मैपिंग होगी, नीचे मैं बताऊंगा, ठीक है, जब आपको ड्राई रन दूंगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी पैटर्न मैंने आपको बताया था, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी पैटर्न। पहले मेरा वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे यूज करते हैं, बार बार बता चुका हूँ। जब भी कोई काम है उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है, नया तरीका ऐड हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जो काम है उसको करने के लिए एक इंटरफेस बनाते हैं, उसको करने के जितने तरीके हैं उन सब के लिए कंक्रीट क्लास बनाते हैं और इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराते हैं, और ये सारे जो भी इंटरफेस का फंक्शन है उसको ओवरराइड कराते हैं। तो पहले आ गई ओडीआई मैच के लिए नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इवेंट मतलब बॉल फेंकी गई वो इवेंट है, उसमें हुआ क्या, विकेट आए या फिर मैच की लास्ट बॉल हो, तभी नोटिफिकेशन चाहता है यूजर। ओडीआई में वो बॉल टू बॉल नहीं चाहता क्योंकि उसमें भी बहुत डॉट बॉलें होती हैं, ठीक है। T20 उसमें इवेंट चाहे बॉल हुई हो, हर बॉल का उसे अपडेट चाहिए क्योंकि रेयरली डॉट बॉल जाती है, विकेट आए तब भी उसको अपडेट चाहिए, बाउंड्री आए तब भी अपडेट चाहिए, ठीक है। टेस्ट में सिर्फ जब विकेट हो तभी अपडेट दो क्योंकि मोस्टली वहां पे डॉट बॉल होती ही रहती हैं, ठीक है, और कोई निश्चित लास्ट बॉल नहीं होती, अंपायर चाहे तो 2-4 ओवर बढ़ा सकता है टेस्ट मैच में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता एक दिन में इतने ही ओवर होंगे, जल्दी हो गया तो 2-4-5 ओवर एक्स्ट्रा भी करा सकता है, लेट हो गया तो 2-4-5 ओवर कम भी करा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने स्ट्रेटेजी बना दी। ओडीआई मैच की स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर ओडीआई मैच के लिए सब्सक्राइब किया है तो या तो विकेट हो या लास्ट बॉल हो तभी नोटिफिकेशन जाएगी। जिन यूजर ने T20 को किया है उसके लिए आखिरी बॉल हो, विकेट हो, बाउंड्री हो तब नोटिफिकेशन जाएगी। टेस्ट में केवल जब विकेट हो तभी नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं मैच क्लास पे। तो मैच की आईडी होगी, उसमें 2 टीमें होंगी, तो उन दोनों टीमों का ऑब्जेक्ट है, मैच का स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया गया है कि यूजर शुड बी एबल टू सी द अपकमिंग मैचेस लिस्ट, और जो मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं उनका रिजल्ट। तो मैचेस का स्टेटस आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। ये आपको स्टेटस कितने तरीके के हो सकते हैं, मैच अपकमिंग हो सकता है, अभी चल रहा है तो लाइव, कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड। स्कोर कार्ड, एक मैच का स्कोर कार्ड होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या स्कोर मैच का रहा है, ठीक है। ग्लोबल कमेंट्री, अब देखो बिल्डर डिजाइन पैटर्न अगर आपने मेरा पढ़ा होगा तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है ना, ये बहुत बड़ा बेस्ट एग्जांपल है बिल्डर डिजाइन पैटर्न का जावा में, ठीक है। मेरा वीडियो देखना तो आपको पता लग जाएगा बिल्डर क्यों यूज करते हैं। मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है जावा में। तो मतलब एक बार आपने डिक्लेयर कर दी,
अब आप अगर उसको चेंज करोगे तो आपको तो लगेगा कि फ्रंट एंड में अरे वाह वाह चेंज हो गई, लेकिन बैक एंड में बहुत मेमोरी हैवी ऑपरेशन पड़ जाता है। ये इंटरव्यू का मॉर्गन स्टैनली का बहुत मतलब मुझसे पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक भाई है ना हमारे, क्या नाम है, बाल्ड हेडेड, टेलेस्को जो भी नाम है, टेलीस्कोप जो भी नाम है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया था ये पढ़ना। ठीक है, तो क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी मैच बनेगा तो उसका एक ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट बनेगा, हर बॉल की जो भी कमेंट्री होगी वो इसी ऑब्जेक्ट में ऐड होती जाएगी टेक्स्ट के फॉर्म में। इसलिए हमने स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्ट्रिंग नहीं बनाया। ठीक है, और हर मैच है, या तो वो ओडीआई होगा या तो टेस्ट होगा, T20 होगा, जो भी होगा, उसकी एक स्ट्रेटेजी होगी नोटिफिकेशन भिजवाने की। ओडीआई की अगर ओडीआई मैच है तो अलग स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, ऊपर मैंने बताया था, और T20 है तो अलग होगी, और ओडीआई है अलग, T20 अलग है, टेस्ट अलग है। ठीक है, और इस मैच को जो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट होगी। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, ऐड ऑब्जर्वर फंक्शन है, कोई नया यूजर आया उसने सब्सक्राइब किया, रिमूव ऑब्जर्वर अनसब्सक्राइब के लिए है, और ट्रिगर इवेंट एक फंक्शन है। देखो ये मेन फंक्शन है, हर बॉल के होने पे ये कॉल होगा, इवेंट ट्रिगर होगा, जिसमें इवेंट टाइप होगा जो आपको बताएगा कि रिजल्ट क्या निकला इस बॉल के होने का, बाउंड्री आई, विकेट आया, क्या हुआ। ठीक है, ये इवेंट है क्या। ठीक है, और ये इवेंट का डेटा होगा। ठीक है, तो इवेंट टाइप अगर बॉल है, या बॉल का मतलब डॉट बॉल, और इवेंट टाइप इक्वल टू विकेट है, या विकेट हुआ है, या फिर बाउंड्री आई है। ठीक है, तो ग्लोबल कमेंट्री में अपेंड कर दो इवेंट का डेटा, मतलब ये इवेंट अभी हुआ, इसमें कमेंटेटर ने कुछ बोला होगा, वो इवेंट डेटा पे आया होगा, उसको आप इस फंक्शन में कॉल कर दोगे तो ग्लोबल कमेंट्री ऑब्जेक्ट में वो अपेंड हो जाएगा, और नोटिफिकेशन चली जाएगी इन लोगों को। ठीक है, अब देखो यहां पे आप सोच रहे होगे कि यार मैंने अभी तो बताया था कि T20 में तभी जानी है जब बॉल पे विकेट हो या बाउंड्री हो, ओडीआई में तभी जानी है जब बॉल पे विकेट हो या लास्ट बॉल हो, बट यहां तो हम हर बॉल पे ट्रिगर इवेंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर से हर बार नोटिफिकेशन भिजवा रहे हैं। तो बेटा हर बार नोटिफिकेशन भिजवा तो रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी के थ्रू भिजवा रहे हैं, और स्ट्रैटेजी के अंदर चेक कर ले रहे हैं कि इवेंट एक्चुअल में हमारे हिसाब से है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि ये टेस्ट मैच भी है, और हर बॉल पे हम ट्रिगर इवेंट नाम का फंक्शन कॉल करा रहे हैं जो कि हर बॉल की कमेंट्री ग्लोबल कमेंट्री में डाल रहा है और स्ट्रैटेजी के थ्रू नोटिफाई कराना चाह रहा है। तो जब हमने ये टेस्ट मैच बनाया होगा तो इसमें टेस्ट मैच की स्ट्रैटेजी डाली होगी। टेस्ट मैच की स्ट्रैटेजी क्या थी, ये थी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम चेक, ये स्ट्रैटेजी हमेशा कॉल हो रही है हर बॉल पे, बट इसके अंदर हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारे हिसाब से इवेंट हुआ है कि नहीं, तभी नोटिफिकेशन भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो इस इल्यूजन में मत रहना कि भैया तो बोल रहे थे कि टेस्ट मैच में अलग तभी नोटिफिकेशन जाएंगी जब विकेट हो, बट यहाँ तो हम हर बॉल पे नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी से नोटिफाई सब्सक्राइबर कॉल कर रहे हैं। भाई इसके अंदर जाके हम चेक कर ले रहे हैं ना यहाँ पे कि इवेंट में विकेट है कि नहीं, तभी तो नोटिफाई करा रहे हैं, नहीं तो नहीं करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपली जो भी सब्सक्राइबर है फॉर लूप लगा के उनको आप ट्रैवर्स करोगे और उनका अपडेट फंक्शन कॉल कर दोगे। बेसिकली हर ऑब्जर्वर को नोटिफिकेशन भिजवाने का यहाँ पे फंक्शन है, उसको आप कॉल कर दोगे। अभी मैं जब आपको ड्राई रन दूंगा कोड का तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो व्यू लाइव स्कोर एक फंक्शन है, वो सिंपली स्कोर कार्ड का ऑब्जेक्ट होता है, वहां से रन्स, विकेट्स, ओवर्स बता देता है। तो मैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैच का स्कोर कार्ड यहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर बॉल पे इवेंट ट्रिगर होगा और यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। दूसरा है व्यू मैच रिजल्ट। तो ये क्या करता है, मैच जब खत्म हो जाता है तो स्कोर कार्ड ऑब्जेक्ट में ही फाइनल स्कोर होगा, वो उठा के यहाँ पे यूजर को प्रिंट करा देता है, ग्लोबल कमेंट्री प्रिंट करा देता है। और मैच स्टेट के लिए क्या होता है, यहाँ पे उस मैच में किस प्लेयर ने क्या क्या किया है वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, स्कोर कार्ड के अंदर मैंने आप ऊपर स्कोर कार्ड क्लास दिखाई थी, आप पीछे जाके देखना वीडियो में, तो उसमें प्लेयर स्टेट्स नाम का एक मैंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर। ठीक है, वो मैप था, उसी की हर एक की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हो। उस मैप में क्या था, हर प्लेयर का स्टैट था, उस मैच का स्टैट। ठीक है,
फिर ये जो सिंगलटन क्लास मैंने बनाई थी वो यहाँ पे सिंगलटन क्लास है लाइव स्कोर सर्विस। इसको सिंगलटन बनाने का क्या तरीका होता है, पहला तो उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बना दो और एक गेट इंस्टेंस फंक्शन बना दो। गेट इंस्टेंस चेक करेगा कि पहले इंस्टेंस क्लास का बन चुका है कि नहीं बना है तो बना दो, वरना पुराना रिटर्न करा दो। ठीक है, ये कैसे सिंगलटन बनाता है ये आपको पता लग जाएगा मेरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें ये देखो अपडेट लाइव स्कोर नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है, मैच लेता है जिसका अपडेट करना है स्कोर, इवेंट टाइप लेता है कि इवेंट क्या हुआ है, ठीक है, इवेंट का डेटा लेता है मतलब क्या कमेंट्री हुई है उस बॉल पे, ठीक है, क्या रन्स है, विकेट है, ओवर्स है, और ये लेता है, उठाता है और यूज़ करता है स्कोर अपडेट करने के लिए। कैसे, मैच के अंदर जो स्कोर कार्ड का ऑब्जेक्ट था उसमें रन्स में ऐड कर देता है, विकेट में ऐड कर देता है, ओवर में जो करंट ओवर है वो ला देता है। ठीक है, तो उसके बाद अपडेट प्लेयर स्टेट, मतलब विकेट हुआ है या रन हुआ है, डॉट बॉल हुई है, तो प्लेयर का भी स्टेट तो अपडेट होगा ही ना। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे सिस्टम को। बेसिकली आप चाहो तो इंटर को ये भी बोल सकते हो कि ये लॉजिक मैं बाद में इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि ये डिजाइनिंग का टेस्ट है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप एक फंक्शन है, आप इमेजिन कर लो कि आप जो चाहते हो वो काम वो कर रहा है, उस फंक्शन को आप प्लेस कहाँ करोगे, किस क्लास के अंदर कैसे यूज करोगे, वो टेस्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं चेक कर रहा हूँ इवेंट टाइप डॉट इक्वल बॉल है या बाउंड्री है, तो बाउंड्री मारी है तो प्लेयर के रन बढ़ेंगे, बॉल फेस्ड एक ज़्यादा हो जाएगी। विकेट है तो विकेट टेकन में एक ऐड हो जाएगा। अगर देखो अगर इवेंट टाइप विकेट का है तो यहाँ पे मैं बॉलर को भेजूंगा एज अ प्लेयर, ठीक है। अगर बाउंड्री का है तो बैट्समैन को भेजूंगा, ठीक है। तो मैं जब कोड वॉक थ्रू दूंगा आपको मेन क्लास यूज करके, तब आपको पूरा यहाँ पे पता लग जाएगा। और आखिरी में जो मैच का स्कोर कार्ड है, भाई किसी प्लेयर का प्लेयर स्टैट बड़ा है तो मैच के अंदर स्कोर कार्ड था, स्कोर कार्ड के अंदर ये प्लेयर स्टैट्स का मैप था, वहां पे इस प्लेयर का अपडेट करना होगा ना, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी में मैच डॉट ट्रिगर इवेंट फंक्शन, ट्रिगर इवेंट मैच क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, ये थी हमारी मैच क्लास, ये हमारा ट्रिगर इवेंट, वो कॉल हो जाएगा। ट्रिगर इवेंट क्या करता था, बेसिकली ऐसे समझ लो कमेंट्री भिजवाना, ठीक है, हर बॉल की कमेंट्री भिजवाना। जब भी कोई बॉल होगी तो पहले तो स्कोर अपडेट कराना होगा, आखिरी में जो भी सब्सक्राइबर है उनको नोटिफाई कराना होगा। तो इवेंट ट्रिगर एक करा देंगे, ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्री पे। तो देखो यार, स्ट्रेटजीज क्यों बनाते हैं हम लोग, कि एक काम है उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है नया तरीका ऐड हो सकता है। रन टाइम पे हम लोग जो तरीका है, अभी मान लो उन 10 तरीके हैं उनमें से कोई एक यूज कर रहे हैं, रन टाइम में कोई दूसरा तरीका यूज करना चाहते हैं, बिना कोड को चेंज किए अगर करवाना है तो स्ट्रेटजी पैटर्न हम लोग यूज करते हैं। वो स्ट्रेटजीज किसी कॉमन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं, तो रिलेटेबल क्लासेस हो गई। भाई हम लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटरफेस बनाते हैं, काम को करने के जितने तरीके हैं उनके लिए कंक्रीट क्लासेस बनाते हैं और इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराते हैं। तो ये जो कंक्रीट क्लासेस हो गई वो रिलेटेबल हो गई। अब अगर आप ओडीआई मैच बनाओगे तो ओडीआई की स्ट्रेटेजी करोगे, टेस्ट बनाओगे टेस्ट की स्ट्रेटेजी करोगे, T20 बनाओगे T20 की स्ट्रेटेजी करोगे। तो सम इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे आप अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, बस उसी लिए हम फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, वही जो इफ एल्स लॉजिक होता है, अभी स्विच केस भी तो क्या होता है, इफ एल्स ही होता है ना, उठा के मैंने फैक्ट्री क्लास में डाल दिया, बस खत्म बात, फैक्ट्री क्लास हो गई। अब देखो ये तो मैच फैक्ट्री हो गई, ऐसी एक इवेंट फैक्ट्री है, इसका मैं आगे वॉक थ्रू दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। अब आते हैं मेन ड्राइवर कोड पे। देखो यार, सबसे पहले मैंने खिलाड़ी बनाया बैट्समैन 1, फिर बॉलर बनाया, ठीक है, टीम बनाई इंडिया, एक बनाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर मैंने एक मैच का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैच फैक्ट्री गए, वहां पे क्रिएट करवाया ओडीआई टाइप का मैच। तो इस फैक्ट्री में गए, टाइप था ओडीआई, तो स्ट्रेटेजी बनाई ये वाली, ठीक है, और ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैच बनाया, तो ये स्ट्रेटेजी हमने पास कर दी। तो ये जो मैच का ऑब्जेक्ट बना होगा, इस मैच में स्ट्रेटेजी कौन सी आ गई, ओडीआई की। अब फायदा क्या होगा स्ट्रेटेजी पैटर्न का, अब देखो, कल को मान लो सिस्टम में कोई नई स्ट्रेटेजी अगर होती, ठीक है, तो मान लो कि हम लोग बोलना चाहते हैं कि ओडीआई में भी हम टेस्ट की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसको पूरी दुनिया देख रही है, वो एक भी बॉल की कमेंट्री मिस नहीं करना चाहते हैं।
सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, इंडिया पाकिस्तान का ओडीआई मैच है, लेकिन इसकी कमेंट्री हमें बॉल बाय बॉल चाहिए, T20 मैच की तरह एक भी बॉल मिस नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे मैच तो ओडीआई का बनाते, लेकिन स्ट्रेटजी वहाँ पे हम लोग डालना चाहते किसकी, पहले तो एक अलग टाइप यहाँ पे बना देते, ओडीआई इंडिया पाकिस्तान, ये अलग ही एक स्ट्रेटजी हो गई। मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि कैसे बिना ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक किए हम एक नई रिक्वायरमेंट को भी इनकॉर्पोरेट करा लेते सिस्टम में। तो सपोज करो कि इंडिया पाक का मैच होता तो एक उसके लिए नई कैटेगरी बना देते, है तो ओडीआई टाइप का मैच, और ओडीआई टाइप का मैच है, और मैच फैक्ट्री डॉट क्रिएट मैच कॉल हुआ है, उसमें टीमों के नाम है, यहाँ पे टीम ए है, टीम बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ओडीआई नॉर्मल मैच के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ओडीआई की स्ट्रेटजी बना देते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक इफ एल्स और लगा सकते थे अंदर कि अगर ओडीआई है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है तब हम T20 नोटिफिकेशन की स्ट्रेटजी भिजवाएंगे, ठीक है। तो ये नई रिक्वायरमेंट को आप हैंडल कर लेते बिना स्ट्रेटजी क्लासेस को चेंज किए हुए, ठीक है। आपने कोई नई स्ट्रेटजी क्लास नहीं बनाई, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी क्लास को नहीं चेंज किया, केवल ये जो फैक्ट्री क्लास है इसमें एक लाइन का चेंज किया। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार तुम तो बोल रहे थे ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है कि क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो तुम तो यार फैक्ट्री क्लास में यहाँ पे चेंज कर रहे हो। तो देखो यार जो अच्छा चलो आप पहले वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि कैसे यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट सही बैठ रही है जबकि मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो यार, एक ऐसे समझो कि हार्ड एंड फास्ट रूल जो होते हैं ना वो कुछ सोच के बनाए जाते हैं, तो जब बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा हो किसी चीज का, या कोई किसी चीज का छोटा सा मिस्टेक बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकती हो, जैसे ये जो फैक्ट्री क्लास है, ये फैक्ट्री क्लास की डिपेंडेंसी कितनी कम है आप सोचो, ये अलग अलग जगह पे सिस्टम पे कॉल नहीं हो रही है, फैक्ट्री क्लास की खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बस क्या कर रही है, स्ट्रेटजी डेलीगेट कर रही है बेस्ड ऑन सम टाइप, ठीक है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर केस को उठा के उसके अंदर इफ एल्स भी डाल दें तो बहुत ज्यादा ये सिस्टम पे अफेक्ट नहीं ला सकती है ना, इसका काम केवल डेलीगेट करना है। सिस्टम पे इफेक्ट कौन सी क्लासेस ला सकती हैं, स्ट्रेटजी क्लास। स्ट्रेटजी क्लास मतलब ये जो हम लोग ओडीआई नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मान लो कि आपने स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चेंज करा होता, सपोज करो फैक्ट्री क्लास के अंदर आप चेंज ना करते और आप बोल देते कि जब हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके अंदर टीम्स का नाम पास कर देंगे और वहां पे जाके इफ एल्स चेक करा लेंगे, और मैथ्स का जो लॉजिक है, मतलब मैथ्स का लॉजिक नहीं, ओडीआई के लिए हम लोग केवल विकेट और लास्ट बॉल पे भिजवाते हैं, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वहां स्ट्रेटजी में जाके यहाँ पे हम लोग बेसिकली बोलते कि यहाँ पे मेरे को टीमों के नाम भी चाहिए, और यहाँ पे आके अगर हम इफ एल्स का लॉजिक चेंज करते तो देखो यार यहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक होता, क्योंकि ये जो लॉजिक है ना ये सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। इस सिस्टम को क्यों ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज होगा, जबकि फैक्ट्री क्लास जो होती है वो सिर्फ डेलीगेट कर रही है स्ट्रेटजी को, ठीक है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं फिर से ये एक चीज़ बता दूंगा कि मैं जो फैक्ट्री क्लास में चेंज कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं लाएगी ओपन क्लोज प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, जबकि ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये बोलता है कि क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, है ना। और भी अच्छा इसको बनाना है तो आप ऐसे कह सकते थे कि यार इस मैच फैक्ट्री क्लास को बने ही रहने देते, इंडिया पाकिस्तान का ओडीआई मैच में अगर आपको T20 की तरह नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी बनानी है तो एक वर्जन 2 करके फिर से नई मैच फैक्ट्री बना देते हैं, मैच फैक्ट्री V2, और उस मैच फैक्ट्री V2 को क्लाइंट कोड में यूज करते हैं। तो क्लाइंट कोड पे तो आप ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन करोगे ही, क्योंकि ये तो यूजर के मोबाइल पे चलता है, क्लाइंट कोड है ये, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो सकता था, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार फुल प्रूफ सिस्टम मतलब ऐसे समझ लो ना यार, नियम कानून सतयुग में बनाए गए थे उस हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है तो थोड़ा बहुत ब्रेक हो भी गया तो क्या ही हो रहा है, ठीक है। दुनिया ब्रेक करती है थोड़ा बहुत,
मेन मेन जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मैच आपने क्रिएट किया, ओडीआई का बना, तो ये जो मैच का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर स्ट्रैटेजी ओडीआई के हिसाब से चली गई होगी। अब दो यूजर हमने बनाए, दोनों को उस मैच का ऑब्जर्वर बनाया, तो उन दोनों यूजर को नोटिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब लाइव स्कोर सर्विस का सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब भी कोई सिंगलटन क्लास बनाते हैं तो कभी भी न्यू कीवर्ड यूज करके उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हमेशा हम लोग उस क्लास का नाम डॉट गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इससे एक ही ऑब्जेक्ट पूरे आपके पूरे एलएलडी सिस्टम में एक ही ऑब्जेक्ट रहता है इस क्लास का, लाइव स्कोर सर्विस का। अब देखो, हर बॉल पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। मान लो ये जो क्लाइंट कोड है वो बोल रहा है कि यार एक बॉल हुई, ठीक है, 0.1 ओवर हुआ और कमेंट्री ये आई इसकी, क्या बोलते हैं, कमेंटेटर की, ठीक है, रन 1 गया, ठीक है, विकेट 0 गया, 0.1 ओवर हुए, और बैट्समैन जिसने भेजा है बैट्समैन 1 ने मारा है, ये बैट्समैन 1, ठीक है। मान लो इसको, मान लो विराट बना देता हूँ मैं, ठीक है। बॉलर मान लो बना देता हूँ अख्तर, शोएब अख्तर, ठीक है। और इसको बना देता हूँ मान लो पाकिस्तान, ठीक है। क्रिकेट मैच बना, और ये यूज़र अंग्रेज कैसे हो गए यार, इसको बना देता हूँ मोदी जी, और इसको बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ, इसको मुशर्रफ बना देता हूँ। मुशर्रफ का ही नाम पता है मुझे पाकिस्तान वालों में से, ठीक है। तो इस क्या बोलते हैं, क्लाइंट कोड ने बोला कि एक बॉल हुई, कमेंटेटर ने ये कमेंट्री की, और एक रन गया, विकेट 0 हुआ, 0.1 ओवर है, और बैट्समैन था तुम्हारा विराट। अब क्योंकि विराट है बैट्समैन, तो इसमें मैं 1 रन क्यों दूं, मैं छक्का दूंगा, ठीक है। दूसरी बॉल हुई, इसमें बॉलर ए टू बैट्समैन एक्स, बेसिकली बॉलर अख्तर टू बैट्समैन विराट, बॉलर अख्तर टू बैट्समैन विराट, ठीक है। 4 रन, 4 रन क्यों, मैं फिर से 6 मारूंगा, 6 रन, ठीक है। 0.2, बैट्समैन कौन थे, विराट, ठीक है। अब तीसरी इवेंट क्या हुआ, विकेट, कमेंट्री क्या हुई, बैट्समैन विराट इज आउट, ठीक है। रन गए 0, विकेट गया 1, ठीक है। पाकिस्तान की जनता दुखी ना हो जाए इसलिए एक विकेट दिला देते हैं शोएब अख्तर को, ठीक है। और 0.3 ओवर हुए, बैट्समैन जो आउट हुआ वो गया विराट, या फिर नहीं, इसमें में बॉलर भिजवाना होता है तो अख्तर भिजवा दिया हमने, ठीक है। अख्तर के स्टैट्स बढ़ जाएंगे। अब देखो मैच डॉट, हाँ अब चलो एक एक बार बता देता हूं कि हुआ क्या होगा। अपडेट लाइव स्कोर फंक्शन कॉल जब हुआ, अपडेट लाइव स्कोर फंक्शन जब कॉल हुआ तो मैच का ऑब्जेक्ट आया, इवेंट टाइप आया कि बॉल हुई है, विकेट हुआ है, कमेंट्री आई, रन, विकेट, ओवर आए, प्लेयर आया। अब पहला इवेंट क्या था, रन स्कोर हुए थे, तो स्कोर कार्ड में वो रन ऐड हुए, छक्का मारा था विराट ने, ठीक है। विकेट 0 गए थे, उतने ही रहे, ओवर जो अपडेटेड आए थे वो अपडेट हो गए 0.1 पहले इवेंट में, ठीक है। प्लेयर नॉट इक्वल टू नल है, विराट पास हुआ था, ठीक है। इवेंट टाइप जो आया था वो क्या था, बॉल, है ना। बेसिकली चलो अच्छा ये भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे छक्का कर दिया है तो इवेंट टाइप बॉल की जगह बाउंड्री होगा अब, और यहां पे भी बाउंड्री होगा, ठीक है। तो तुम्हारा इवेंट टाइप यहां पे बॉल या बाउंड्री में से कोई एक होना चाहिए। बाउंड्री है तो रन बढ़े किसके, जो भी प्लेयर पास हुआ था, प्लेयर कौन पास हुआ था, विराट कोहली, तो उसके रन बढ़े। बॉल फेस्ड, एक बॉल तो फेस की है वो बढ़ी। अगर विकेट होता, जैसे तीसरे इवेंट में शोएब अख्तर ने विकेट लिया था तो उसके विकेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतनी प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद ये तो चल प्लेयर के पर्सनल बड़े स्टैट, उस प्लेयर ने जिस मैच के अंदर खेला है उस मैच के अंदर भी तो स्टैट चाहिए ना प्लेयर का। तो मैच के अंदर जो स्कोर कार्ड का ऑब्जेक्ट था उसमें जो प्लेयर स्टैट का मैप था उसमें पुट हो गया ये प्लेयर का नाम। बेसिकली यहाँ पे पुट इफ एब्सेंट होना चाहिए, 50 बार एक प्लेयर को थोड़ी ना डालोगे। तो जो भी प्लेयर आया था, विराट कोहली आया था, ठीक है,
उसके लिए ये सारा अपडेट चला गया। वीडियो को पॉज करना तो आपको पता लग जाएगा कैसे अपडेट हो रहा है। जावा का सिंटैक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब इतनी सारी प्रोसेसिंग हो गई, अपडेट मैच का जो लाइव स्कोर था वो यहाँ तक अपडेट हो गया। अब नोटिफिकेशन भी तो भिजवाने हैं यूजर को, तो उसके लिए इवेंट ट्रिगर कराया और ये इवेंट टाइप डाला, जो कमेंट्री ऑब्जेक्ट आया था वो डाला। तो हम आते हैं मैच के लिए। मैच के अंदर से कॉल हो रहा है ना ये मैच डॉट ट्रिगर इवेंट। तो मैच क्लास कहाँ थी? मैच क्लास यहाँ थी। इसका ट्रिगर इवेंट कॉल हुआ था। इसमें इवेंट टाइप आया था बाउंड्री, इवेंट का डेटा आया था जो भी कमेंटेटर ने कमेंट्री की थी। ठीक है, तो ये चेक लगेगा यहाँ पे, बाउंड्री वाला ट्रू होगा तो ग्लोबल कमेंट्री का जो ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग बिल्डर करके यूज किया था उसमें पहले इवेंट डेटा चला जाएगा। उसके बाद जब ये मैच का ऑब्जेक्ट बना था तो इसमें ओडीआई की स्ट्रेटजी बनी थी। तो ओडीआई की स्ट्रेटजी का नोटिफाई सब्सक्राइबर फंक्शन कॉल होगा, इसी मैच का ऑब्जेक्ट जाएगा, इवेंट टाइप जो कि है बाउंड्री और इवेंट डेटा यानी कमेंट्री। अब स्ट्रेटजी कौन सी थी? ओडीआई वाली। तो ओडीआई वाली स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, इवेंट टाइप अगर विकेट हो या लास्ट बॉल हो तभी नोटिफिकेशन भिजवाते हैं, बट यहां पे तो बाउंड्री है इवेंट, इसलिए ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो स्ट्रेटजी के फायदे। तो जो यूजर ने सब्सक्राइब किया था उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, ट्रिगर इवेंट फंक्शन, ट्रिगर इवेंट फंक्शन कहाँ आ गया? ये ट्रिगर इवेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर इवेंट फंक्शन का काम खत्म होता है। फिर दूसरे इवेंट में भी बाउंड्री लगी थी, विराट ने छक्का मारा था, फिर से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तीसरे इवेंट में अख्तर ने विकेट लिया था। तो अब जब ये नोटिफाई सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी का कॉल होगा ओडीआई के लिए तो इवेंट आया होगा विकेट, तो अब नोटिफिकेशन जाएगी। समझे? हाँ, तो ये होता है सिस्टम। तो ऐसे हमारा क्रिक इन्फो का सिस्टम काम करेगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे आप शायद थोड़ा सा ना समझ में आए हो कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपको लग रहा होगा मैच फैक्ट्री क्लास ब्रेक कर रही है, बट ऐसे समझ लो यार कि जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल कहा गया है वो उन क्लासेस के लिए कहा गया है जो सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर आपने कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। ये बिजनेस का लॉजिक नहीं है, ये तो आपके सिस्टम के अंदर का लॉजिक है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक क्या होता है कि जैसे आपने प्रोडक्ट बनाए होंगे तो ये प्रोडक्ट ओनर लोग आते हैं, बिजनेस से रिक्वायरमेंट लेके आते हैं कि अगर ये हो तो ऐसा कर देना, ये हो तो ऐसा कर देना। अपने कोड में आप उसको कैसे करा रहे हो इससे क्या लेना देना बिजनेस वाले को। तो ये मैच फैक्ट्री वही है कि अपने कोड में आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक है, बट बिजनेस लॉजिक जो स्ट्रेटजी है वो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है जो चेंज नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। और दोस्तों मैंने 15 डिजाइन पैटर्न के रियल इंटरव्यू क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सारे पैटर्न में कवर हो गए हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो मुझे जरूर बताना। मेरी लो लेवल डिजाइन की पूरी प्लेलिस्ट भी खत्म हो गई है, सारे पैटर्न मैंने वहां कवर करा दिए हैं। हाई लेवल डिजाइन की मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें मेरे को फीडबैक चाहिए कि आप बताना आपको और प्रैक्टिस चाहिए लो लेवल डिजाइन पे या मैं हाई लेवल डिजाइन स्टार्ट कर सकता हूं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों।